2 minutes more. Right, sir. बिल्कुल मैं comfortable हूँ, कोई problem. Yeah. Then we will start. Right, sir. In the field of education, in the area of student stress management counseling, public and corporate relations, licensing, works with government sectors, print and electronic media, affairs. He conducted live motivational creative workshops for the students, conducted practical training sessions in yoga and meditations for the budding engineer students and faculty members of engineering colleges time to time, workshops and activity sessions for school students and engineering students, many occasions. Please mute yourself. Somebody mic is disturbing. Someone mic is disturbing. He conducted live workshop for engineering students, school students at various topics like beauty of inner engineering through yoga and meditation, health engineering through yoga and meditation, mind-body awareness program, facing challenges with a smile through stress management, say goodbye to exam phobia through stress management, physical and mental health through stress management, discover the hero within yourself, spine care and back pain exercise through yoga. सर मुझे हो रहा है बैक पेन अभी तो मैं आपका सेशन लूंगा. The power of silence through meditation. So wonderful. मतलब इतना बढ़िया experience सर का. He has given us so many invited talks and conducted workshops in Bhilai, Durg, and Jamshedpur, and so many places. A very long, detailed. So it is better, and he has done online webinars. So many webinars, activity performed during session. Normally, yogas and therapy, and so many things is used to do. So, sir, it is better that you just a minute so that you can tell about yourself in better way than I can, because you have a very long biodata with me. So I think it's a small introduction of Nair Saab. So Nair Saab can elaborate right now, and now platform to Nair Saab. Please, sir. Thank you very much. Thank you for your wonderful introduction. And with my folding hands, pranam, good evening and namaskar to one and all dignitaries present here. Yeah. सबको मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार स्वीकार करें. Namaskar. So, Dr. Akhilesh Barve sir, it was wonderful introduction and the way which you have expressed और starting आपने किया इतना खुशनुमा माहौल से इस पूरे टीम को आपने बांधा, that was excellent. Really appreciate you. So my name is Rajiv. I am right now addressing you from Bhilai, Chhattisgarh. I am a certified stress management counselor by National Mental Health Mission, Government of Chhattisgarh. And I am working as a corporate relations manager in Chhatrapati Shivaji Group of Institution. It is in Durg. We are having engineering college, pharmacy and BSc college since 99. So it is not my profession. It is my passion that I used to take these classes. ये मेरा passion है, and you know, इससे मुझे बहुत सारे benefit मिला है और लोगों को बहुत benefit हुआ है. So आज इस session में हम वो चीज share करेंगे. The thing is that कि हम आज chair में बैठ के कर रहे हैं. Generally, my session is you know that it is a workshop like session. 3 hours का सेशन होता है, ब्यूटी ऑफ इनर इंजीनियरिंग थ्रू योग एंड मेडिटेशन, जिसमें अपन करते हैं. तो सब अभी के टाइम में सब सर मैंने अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा. तो ब्रेकफास्ट करने के बाद जो चीज नहीं कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते वो मैं नहीं कराऊंगा, मैं बताऊं. लेकिन आज का सेशन वंडरफुल होगा और आपके लाइफ में यादगार रहेगा, इस चीज का गारंटी है. संध्याकालीन समय है, भारतीय समय अनुसार 5:50 होने वाले हैं. तो इस सेशन की शुरुआत करता हूं. The topic of today's session is boost up your immunity through yoga meditation. It will be based on the science of breath. Science of breath.
तो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू थैंक्स मैनी मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्पेशली डॉक्टर सोनी सर फॉर coordinating this program in a very wonderful, very fruitful manner. So before starting this program, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोग से, that आने वाला समय, आने वाला 1 घंटा, you should be like a child. जैसे एक पिता के सामने बच्चा बैठा रहता है, गुरु के सामने स्टूडेंट बैठे रहते हैं, इस प्रकार आपको मेरे इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करना है। आप लोग सब डिग्निटरीज हैं, यू आर वेरी पर्सनालिटीज, सब लोग ईश्वर के पुत्र हो, बट आज 1 घंटा जो है हम जैसे बोलते हैं वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, आफ्टर दिस सेशन यू विल फील चेंज। आप अभी जैसे आए हैं उसके बाद यू एनालिसिस योरसेल्फ दैट कि मुझ में क्या चेंज हुआ, इसमें वो शक्ति है, वो दिव्यता है, वो उमंग आपको मिलेगा। My voice is audible, na sir? My Yes, sir, voice very is much. audible? Very much audible. Perfect. Okay. Perfect. Okay. Slide is So, also. okay. My medium of instruction will be in Hinglish, H-I-N-G-L-I-S, Hinglish. That is a mix of Hindi and English. Meanwhile, I am knowing 5 to 6 languages, English, Hindi, Chhattisgarhi, Malayalam, Tamil, I know. Agar if anybody wants to talk in that language also, I am comfortable, no doubt, no problem. But इस क्रिया के दौरान, इस सेशन के दौरान मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा आपके आंखें बंद करने को। देन यू हैव टू क्लोज योर आईज। क्लोज योर आईज मीन्स आपको आंखें बंद करना है बहुत धीमी गति से, और उसके बाद जब मैं आंखें खोलने बोलूंगा तब यू हैव टू ओपन योर आईज। कैसे ओपन करेंगे? बहुत धीमी गति से। इमीडिएटली आपको आंखें नहीं खोलना है, आप पलक को झपकते ब्लिंक करते हुए, बाय ब्लिंकिंग योर आईज यू हैव टू ओपन वेरी स्लोली, बिकॉज आई इज द डोर ऑफ आवर ब्रेन। आंख जो है हमारा ब्रेन का दरवाजा होता है। कभी भी अपन जब ध्यान में बैठते हैं, जब योग करने के बाद जब बैठते हैं, उसके बाद जब आंखें इमीडिएटली नहीं खोलना चाहिए, आंख को बहुत धीमी गति से खोलना चाहिए। आज इस सेशन में हम सीखेंगे बॉडी रोटेशन, सिंपल टेक्निक ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। आपको इम्यूनिटी कैसे आपको बरकरार रखना है, आपको इम्यूनिटी कैसे लाना है, क्योंकि हम लोग सब वी ऑल आर इन ए वेरी स्ट्रेस नाउ। पैंडेमिक में सब लोग बहुत स्ट्रेस में है, टेंशन में है, फीलिंग लॉनलीनेस। सी मैंने काउंसलर, अभी हमारे पास बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग आते हैं, फीलिंग स्ट्रेस, डिप्रेशन। उसके मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या सिम्टम्स होता है, स्ट्रेस मतलब क्या सिम्टम्स होता है, ये पूरा मैं इस दौरान बताऊंगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है, आई विल गिव माय ईमेल आईडी, आई विल गिव माय फोन नंबर। आप कभी भी 24/7 यू कैन कॉल मी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हमारी मदद वाली हाथें आप तक जरूर पहुंचेगी। एंड माय ऑल सेशंस आर वेरी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, आई एम नॉट चार्जिंग फॉर एनीथिंग। तो आज हम क्रिया और बाकी स्टार्ट करने से पहले, हम आज जो भी हैं, जहां पर भी है, कहीं ना कहीं हमारे गुरु का आशीर्वाद है, हमारे माँ पिता का आशीर्वाद है, तो उनको हम ध्यान करते हुए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे आग्रह है आप लोग सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, दैट इज मेरुदंड सीधा। आप जहां भी बैठे हो सिंसियरली बैठना है, सीरियसली नहीं बैठना है। सीरियस व्यक्ति कहां होता है? सीरियस व्यक्ति हॉस्पिटल में होता है। सिंसियर, यू हैव टू सिट सिंसियरली। और नेक्स्ट कंडीशन है 10:10 10:10। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? 10:10। दैट मीन्स कोई भी आप क्लॉक, कोई भी घड़ी का विज्ञापन देखेंगे, हाँ कोई भी विज्ञापन देखेंगे, देखिए उसमें इंडिकेट होता है 10:10 दिखाता है। कोई भी घड़ी का विज्ञापन कभी देखेगा, उसमें इट इंडिकेट्स 10:10। दैट इज स्माइल, फेस वैल्यू, मुस्कान। कहते हैं कि वो पर्सनालिटी तब तक खूबसूरत नहीं लगता, वो व्यक्तित्व तब तक खूबसूरत नहीं होता जब तक उस चेहरे में मुस्कान ना हो।
इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा कर गम भुलाना जिंदगी है, जीकर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर अगर मुस्कुरा सकते हो तो वह जिंदगी है। During the time of failure, during the time of tension, during the time of pandemic, if you are able to keep smile on your face, then surely you will come back to success. That is the funda of nature. मुस्कान बना के रखिए। देखिए, इस planet में nobody is permanent. Some people are keeping ego like that कि हम इसमें thousand of years जीने के लिए आए हैं। No, nobody is nobody is permanent. And planet never, this world, this globe never assures you, this life never assures you, promise you that हम दूसरा दिन का सुबह देख पाएंगे। हम जब रात को सोते हैं तो that we are not confirmed कि दूसरा दिन हम उठ पाएंगे। तो देर इज नो सर्टेनिटी। सो जब तक हम हैं खुशनुमा रहें, मुस्कुराते रहें, अपनों के साथ रहें। सी दिस इन दिस पैंडेमिक आई हैव सीन दैट सेवरल फैमिलीज आर डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ लोनलीनेस। व्हाट डू यू मीन बाय लोनलीनेस? लोनलीनेस का मतलब ये नहीं कि कोई अकेला बैठा है। मैं देखा हूं कई फैमिली में अभी देखा हूं कि घर में जो बुजुर्ग है, बुजुर्ग से उनके बच्चे बात नहीं करते हैं, उनको अकेला छोड़ते हैं। सी नेग्लेक्ट कभी नहीं। आप कभी भी बुजुर्ग को का अवहेलना नहीं करिए, बिकॉज वॉट एवर द थिंग वी डू दैट कम्स बैक। प्रकृति का नियम है, दिस इज द फंडा ऑफ द नेचर, दिस इज द पैरामीटर ऑफ नेचर। वॉट एवर द थिंग वी डू दैट कम बैक टू यू। आप जैसा कर्म करेंगे, देयर इज नो नर्क एंड स्वर्ग, सब चीज इसी प्लैनेट में है, और हम जैसा करते हैं वैसे ही रिजल्ट हमको मिलता है। द थॉट प्रोसेस, हम जैसा विचार करते हैं वही रिजल्ट हमको आता है। हम किसी के प्रति अगर ईर्ष्या रखते हैं तो हमको भी वही मिलेगा। किसी के प्रति हम अच्छे भावना से देखते हैं, अच्छा भावना सोचते हैं, हमारा जो पूरा एंटायर जो है प्रकृति जो है हमको अच्छा देन देता, अच्छा हमको एहसास दिलाती है। चलिए, आंखें सीधी सीधी स्ट्रेट, चेहरे में मुस्कान। अगर मुस्कान नहीं भी आ रहा होगा तो आर्टिफिशियल मुस्कान रखें, नकली मुस्कान रखें, लेकिन मुस्कान रखें। और देखिए, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड के ऊपर इस प्रकार रख के आराम से स्ट्रेट बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। हम अपने गुरु, हम जहां पर भी है आज अपने गुरु के आशीर्वाद के कारण है। हम उन गुरु को याद करते हैं। आप उन कोई भी ऐसे गुरु को याद करें आपके लाइफ में जो आपका लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा। उनके लिए आज गुरु वंदना से शुरुआत करते हैं। मेरे साथ ध्यान से आप सुने। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोग सब जो भी गुरु हैं, जो भी गुरु के प्रोफेशन में है, सबको मेरा वंदन, मेरा प्रणाम। बहुत धीमी गति से, धीरे धीरे, जो भी आंख बंद किए हुए बहुत धीमी गति से अपनी आंखें खोल सकते हो। अब हम बूस्टअप योर इम्यूनिटी थ्रू योग एंड मेडिटेशन में हम बहुत जल्दी जल्दी एक प्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि हमारा बॉडी ह्यूमन इंजीनियरिंग कैसे है। देखिए, ये देखिए ब्रेन है हमारा, ब्रेन इज मोर पावरफुल देन सुपर कंप्यूटर। दिस शेयरिंग इज क्लियर सर? स्क्रीन शेयरिंग दिख रहा है? Yes, sir, it is visible. सुपर कंप्यूटर से ज्यादा पावर है हमारा मस्तिष्क।
आज हम सीखेंगे मस्तिष्क में ऑक्सीजन कैसे भरना है, कैसे ऑक्सीजन लेवल ले जाना है, वो हम सीखेंगे। नेक्स्ट इज आई। अपना आई जो है 576 मेगापिक्सल कैमरा से भी पावरफुल है। इट इज द परफेक्ट लेंस मेड बाय द सुपरनैचुरल पावर। आंख जो है परफेक्ट लेंस है। देखिए कई मैं देखता हूं हमारे स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बिना हेलमेट के, बिना ग्लास के फर्राटेदार मोटरसाइकिल चला के जाते हैं। अगर आंख में कुछ भी अगर लग गया, कुछ भी हो गया, ये जो है ना, ये ओरिजिनल रोशनी कभी वापस नहीं आती है। तो हमारे आंख का केयर बहुत अच्छे से करना चाहिए। सुबह जब उठते हैं आंखों में अच्छे से पानी डालना चाहिए, पानी बहुत अच्छे से पानी डालना चाहिए आंख। नेक्स्ट इज नोज ईयर जो है हमारा रडार सिस्टम के जैसे काम करता है। इट इज वर्किंग लाइक ए रडार सिस्टम। टीथ ग्राइंडिंग मशीन। हमारा जो दांत है 32 दांत होता है। इट इज वर्किंग लाइक द ग्राइंडिंग मशीन। सी हमारे स्टोमक के अंदर ऐसा कोई भी मशीन नहीं होता जो पचा सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं जब हम भोजन लेते हैं तो हमको कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। वी हैव टू च्यू फॉर एटलीस्ट 32 टाइम्स। अगर 32 टाइम्स अगर च्यू के खाएंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगा, पेट में, पेट जो है, सी दिस इज आवर मध्य प्रदेश। पेट के जो है हमारा बॉडी इज हिंदुस्तान एंड आवर स्टोमक इज मध्य प्रदेश। इफ आवर मध्य प्रदेश इज ओके देन एंटायर इन द हिंदुस्तान इज ओके। आप लोग सब मध्य प्रदेश में मैक्सिमम लोग बैठे हैं। मध्य प्रदेश बहुत पावरफुल है। मध्य प्रदेश ठीक है तो पूरा हिंदुस्तान सही होगा। जो है डिसीज का जननी जो है पेट है। ईच एंड एवरी प्रॉब्लम कम्स फ्रॉम आवर स्टमक। सो हमारा पेट को सही रखना बहुत जरूरी है। तो हम जो भी भोजन करते हैं हमको अच्छा से च्यू करके खाना चाहिए। हमारा जो टंग है, स्किन है, लाइक ए सेंसर मशीन। अभी देख रहे हैं ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर हर घर में एक ऑक्सीमीटर होना चाहिए। अभी ऑक्सीमीटर हमेशा चेक करते रहिए ऑक्सीजन लेवल कहीं कम तो नहीं हुआ है, पल्स ठीक है। 94 से नीचे ऑक्सीजन लेवल नहीं होना चाहिए। 98 99 बहुत अच्छा ऑक्सीजन लेवल है। ऐसे 450 500 1000 रुपए में बढ़िया ऑक्सीमीटर आता है, आप लेकर जरूर रखिए। नेक्स्ट इज हार्ट। इट इज ए पंप हाउस ऑफ अवर बॉडी। और जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है ना सप्लाई करता है। तो हम वहां देखेंगे कि हम जो ऑक्सीजन वहां तक कैसे पहुंचाएंगे। मैं बहुत जल्दी समय सीमा कम है, सो इसलिए मैं बहुत जल्दी ये कर रहा हूं। आप लोग को इस प्रेजेंटेशन चाहिए तो मैं शेयर जरूर करूंगा। किडनी प्यूरिफाइंग एंड, इसके बारे में तो आप जानते हैं। स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, गाड़ी में जो शॉकअप लगा रहता है, ऑब्जर्वर, शॉक ऑब्जर्वर, चेचिस, इसका रोल प्ले करता है। तो चेचिस, रीढ़ की हड्डी में कैसे, रीढ़ की हड्डी को कैसे मजबूत रखना है। देखिए मेरा एक सेशन होता है स्पिन का, स्पाइन केयर एक्सरसाइज है स्पिन का। ये सिर्फ इट इज डेडिकेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ आवर बैकबोन, लुम्बर पेन, जितना पेन है वो सेशन होता है। वो सेशन ही इटसेल्फ इज अ 3 आवर्स सेशन। कभी आप लोग कभी मेरे को इनवाइट करेंगे पैंडेमिक के बाद तो मैं आके वहां जरूर सिखाऊंगा। वेरी वंडरफुल सेशंस फॉर बैक पेन। जितने भी लेडीज जैसा होता है बैक पेन में बैठे रहते हैं प्रोफेसर, तो उनके लिए बहुत ही सिद्ध एक्सरसाइज है। नेक्स्ट इज नी बियरिंग। द बेस्ट बियरिंग इन दिस प्लैनेट इज आवर नी। बियरिंग का जो आप देखते हैं, हम देखते हैं फैक्ट्री में बियरिंग होता है, उसमें जब तक ऑयल नहीं डालता बियरिंग आवाज करता है। हमारा नेचुरल बियरिंग है हमारा घुटना। तो इसमें भी मैं बताऊंगा कि क्या करने से हमारे घुटने में पेन नहीं होगा, कम होगा। वायरिंग, एंटायर न्यूरो सिस्टम, 72,000 72,000 नस नाड़ियां दौड़ती है हमारे ब्रेन से लेकर पूरे एंटायर शरीर तक। इतना परफेक्ट मैकेनिज्म है बाय द लॉर्ड ऑलमाइटी, बाय द वंडरफुल दिस क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, कि हमारा एंटायर शरीर कहीं भी कुछ भी दिक्कत होता है होगा तो हमारा पूरा शरीर इफेक्ट करता है। तो मैं उसमें भी हमारे एंटायर न्यूरो सिस्टम को कैसे अच्छा रखना है इसके लिए भी मैं अच्छा क्रिया बताऊंगा। अब हम देखते हैं कि हाउ टू मेंटेन ए वेरी सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड दिनचर्या। रोजमर्रा की जिंदगी में हम कैसे एक अच्छा डिसिप्लिन लाइफ रख सकते हैं।
हम अगर डिसिप्लिन लाइफ रखेंगे ना, एंटायर लाइफ जब तक हम जिएंगे ना, किसी का सपोर्ट नहीं लगेगा। जान है तो जहान है। जब तक हम स्वस्थ रहते हैं ना, सब चीज अच्छा लगता है, इस दुनिया रंगीन लगता है, खूबसूरत लगता है। जिस दिन हमारा तबीयत खराब होगा तो हमारे अपने भी साथ छोड़ देते हैं। दैट इज द बिटर ट्रूथ आई एम टेलिंग। मैं भी 90 किलो का था, 92 किलो का था। मैं एक्सरसाइज ये सब करके मैं अपने आप को ये किया हूं। मैंने बहुत पाया है, इसीलिए मैं देता हूँ। मेरे को बहुत मिला है योग से। बियॉन्ड मेडिकल साइंस है, बियॉन्ड मेडिकल साइंस। आप डेली 1 घंटा समय शरीर को दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका 23 आवर्स बहुत खुशनुमा जाएगा, अच्छा जाएगा। आप डेली अगर 10 घंटा काम करके थकते हैं, जिस दिन अगर 1 घंटा शरीर को दिए, उस दिन अगर 14 आवर्स काम करने के बाद भी नहीं थकेंगे। ये मेरा गारंटी है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं अभी इंजीनियरिंग बच्चों को करवाता हूँ योगा। मेरा एक योगा करवाने का स्टाइल अलग है। हम लोग एक फनी टाइप से करते हैं उसको, एक में एक अलग उसमें एक अलग एसेंस डाल के करते हैं, ताकि बच्चे उसको अच्छा से एक्सेप्ट कर ले। तो बच्चे पूछ के आते हैं, बच्चे ऑन डिमांड रहता है हम लोग सबका कार्यक्रम। वेकअप इन द मॉर्निंग, सुबह जब उठते हैं आप कोई नेगेटिविटी के साथ ना उठें। आप खूब एनर्जी एंथुसियाज्म के साथ उठे सुबह। सुबह मैं जैसा बताया कि थॉट प्रोसेस जैसा होता है हमारा, ऐसे ही हमको वापस मिलता है। सुबह का दिनचर्या जो है, उठने के बाद आप गर्म पानी में, अभी का स्थिति के अनुसार बता रहा हूँ, विटामिन सी प्लेस ए वेरी वाइटल रोल इन दिस पैंडेमिक। विटामिन सी, कई लोग देखिए लिमसी टैबलेट खाते हैं, कुछ खाने की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ नींबू है, नींबू निचोड़ के गर्म पानी में नींबू निचोड़ के आप सुबह लीजिए, नींबू पानी। देखिए कई लोग क्या होता है, कई लोग को नींबू सूट नहीं होता है, तो ऐसे लोग को एलोवेरा जूस पी सकते हैं। एलोवेरा जूस इजीली अवेलेबल है मार्केट में, कई सारे कंपनीज के हैं, आयुर्वेदिक कंपनी के हैं, अच्छे अच्छे जूस अवेलेबल है। वो भी अगर सूट नहीं होता है तो हॉट हनी वाटर, गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डाल के आप पी सकते हैं। आपका एंटायर शरीर में जितनी भी टॉक्सिन्स है ना, सब निकल जाएगा। और उसके बाद आप अंकुरित चना, अंकुरित जो है ना, अंकुरित रखें, रंग बहुत सस्ता भी होता है, अंकुरित चना आप खा सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि कॉपर के, तांबे के बर्तन में द वाटर विद, जो तांबा है, तांबा का जो बर्तन है, उसमें आप पानी डाल के आप लेंगे, रात को ऐसा रख लिए और सुबह तांबे के पानी में पिएंगे, तो वो बहुत ही अच्छा औषधि है। और हल्का सा धूप लीजिए, धूप बहुत जरूरी है। आपका छत में, आपका कहीं पर भी थोड़ा जाके घूमिए, थोड़ा सा सनलाइट लीजिए शरीर में। तो ये जो भी बैक्टीरिया वायरस है ना हमारे स्किन में, ये सब चीज सुबह का सनलाइट जो है बहुत पावरफुल होता है। और हम जानेंगे उसके बाद हमारे शरीर के लिए हमको करना है योग और मेडिटेशन। योगा एंड मेडिटेशन, व्हाट exactly what is yoga? I will tell you. Yoga is the combination of mind, body and soul. It is derived from the word yuj, y-u-j. Yuj is a Sanskrit word. It mainly yoga consists of 3 main branches. क्या है, क्या क्या है? आसना, ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। ये सब हम आज करेंगे। उसके बाद आप दिन स्टार्ट करिए जॉगिंग के साथ। बॉडी को थोड़ा सा अच्छा से हिला लीजिए, अच्छा से जॉगिंग करेंगे सुबह, थोड़ा सा खड़े होके भी कर सकते हैं। और ऐसे जगह को चुनिए जहां पर क्रॉस वेंटिलेशन है, जहां पर वायु जो है, एयर इजीली फ्लो होता है। सेलेक्ट द प्लेस विद द क्रॉस वेंटिलेशन। उसके बाद हम करते हैं बॉडी रोटेशन। बॉडी रोटेशन करते हैं। बॉडी रोटेशन बहुत अच्छा होता है। कैसे? सर से लेकर हम पांव तक रोटेट करते हैं। चलिए अब मेरे साथ आप लोग करेंगे सब 100%। ठीक है, सब रेडी है? आवाज आ रही है? सही आवाज। आ रही है सर, आ रही है, बढ़िया। ओके ओके, तो सब इस प्रकार अपने लेफ्ट हैंड को सामने रख लें। जैसा मैंने कहा है, आग्रह किया आप लोग से, मैं जैसे बोलूंगा छोटे बच्चे बन के सुनेंगे, और मैं जैसे कराऊंगा आप करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं सेशन के बाद आप देखिए आपके शरीर में क्या ऊर्जा की प्रवाह हुई है। आपके शरीर में ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम जो कई समय से चल रहा था ना, आज दूर हो जाएगा, इस चीज की गारंटी है।
आपके शरीर में जो ऊर्जा का आज लहर दौड़ेगी, कई सारा ब्लॉकेज को दूर करते हुए वो बहुत दूर समुद्र में फेंक देगी लेके। तो इस प्रकार आज आप बहुत फ्रेश फील करेंगे। इस प्रकार हाथ रख लें। अब एक उंगली को सामने रखें। दिस इज नॉन एज क्लैपिंग थेरेपी। क्लैपिंग थेरेपी। सर राजू सर, यस सर। ये आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है, तो ये भी रखना है या फिर आपको ही देखना है? दोनों चीज। नहीं नहीं नहीं, हमको देखना है, हमको देखना है। नहीं तो अच्छा, आपका ये शेयर हो रही है स्क्रीन? अच्छा, ओके 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 ओके। ठीक है सर, क्लियर है? डॉक्टर साहब क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है, क्लियर है। अब मैं सब पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर को पिन कर लिया जाए ताकि सर की इमेज दिखे, राजू साहब की इमेज दिखे, राजू साहब दिखे स्क्रीन पे ओनली। एवरीबॉडी यू जस्ट पिन टू राजू सर स्क्रीन। थैंक यू। देखिए, हम आज एक क्लैपिंग थेरेपी करते हैं। क्लैपिंग थेरेपी, इसे अपनी शरीर में एक नई ऊर्जा की लहर दौड़ेगी। क्लैपिंग थेरेपी इस प्रकार लेफ्ट हैंड रख के सिंगल उंगली, एक उंगली से आप ताली बजाएं। दो उंगली से 3, जोश के साथ, उमंग के साथ, मुस्कुराते हुए, कंजूसी नहीं। 4, 5, 2, 1, 3। हम बताएंगे बाद में इसका क्या असर हुआ आप में। 5, साइड। Clapping therapy, clapping therapy. You are undergoing through the very powerful process of clapping therapy. Next. मुस्कुराते हुए, कंजूसी नहीं, चेहरे में मुस्कान के लिए कंजूसी ना करें। नेक्स्ट पोज। उसके बाद हाथ देखिए, ये जो पर्वत है, ये जो हमारे उंगलियों के बीच में है, इससे जोरदार ताली बजाएं। ये नीचे टच नहीं होना चाहिए, ऊपर भी टच नहीं होना चाहिए। जोरदार। और इस क्लैपिंग के साथ मन में एहसास करें, मन में वो भावना लाएं, आपका शरीर में कहाँ जो समस्या है, अगर कहीं दर्द है, कुछ भी है, पूरा केंद्रित करें उस ओर। और इस क्लैपिंग के साथ वो पूरा निकल के चले जाएगा। देखिए, एक क्लैपिंग करना है अपन को। ये पर्वत, इस पर्वत बोलते हैं, इस पर्वत को इस प्रकार क्लैपिंग करना है। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट। नेक्स्ट, हाथ के ऊपर, राइट हैंड, हाथ, शोल्डर, राइट हैंड, शोल्डर। और जोरदार ताली बजाएं। हाथ क्लैपिंग थेरेपी। और हाथों को घर्षण करें और दोनों हाथों को पास लाएं, टच मत करें। देखिए, एक मैग्नेटिक वेव तैयार हुआ होगा, उस एक खिंचाव हो रहा होगा हल्का सा। अब जोरदार उसको घर्षण करते हुए आंख और माथे में लगा लें। अच्छा से जोरदार घर्षण करते हुए अपने दोनों हाथों को अपने आंख और माथे में लगा लें और आंखें बंद कर लें। नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएं और विश्राम करें। आंखें जब बंद करने बोलूंगा तो आंखें बंद ही रखना है, और जब खोलने बोलूंगा तो बहुत धीमी गति से आंखें खोलना है। आपके शरीर में हो रही ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें।
Feel the flow of energy in your body. करोड़ों करोड़ों रुपए के शरीर के साथ रहें, मन के साथ रहें, विचारों के साथ रहें, दिव्यता के साथ बैठें, तन्मयता के साथ बैठें, उमंग के साथ बैठें, खुशनुमा माहौल में बैठें। हे ईश्वर, हे वाहेगुरु, हे जीसस, हे अल्लाह। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। अब बॉडी रोटेशन करते हैं, सीखते हैं बॉडी रोटेशन कैसे करते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक अपन को रोटेट करना है। तो सबसे फर्स्ट क्या रोटेट करेंगे? सबसे ऊपर रोटेट करने वाला क्या अंग है हमारा? एनीबडी कैन टेल? गर्दन। अगर ऊपर से हमको रोटेट करना है तो सबसे फर्स्ट क्या रोटेट करेंगे? आई। आई। आई, वेरी गुड। आई, आंख। अपन करते हैं, स्ट्रेट बैठ जाएं और इस प्रकार उंगली रख लें, थंब, और इसको इस थंब से बड़ा सा शून्य बनाएं और आंखों से देखें, सर को बिल्कुल नहीं हिलाएं, इसको आंखों से देखें। यू आर अंडरगोइंग थ्रू आई एक्सरसाइज। मॉर्निंग में करना है भाई, मॉर्निंग या इवनिंग में डेली। उल्टा लेफ्ट हैंड 5 बार। बस सबको छोटा थोड़ा थोड़ा अपन करेंगे क्योंकि समय नहीं है। वापस विश्राम। नेक्स्ट क्या है रोटेट करने के लिए? मुंह, माउथ में अच्छा से हवा भर लें। हवा भर लीजिए और उस हवा को अच्छे से मुंह के अंदर हिलाएं। सेकेंड स्टेज ऑफ रोटेशन हो गया। थर्ड, सांस भरते हुए सर को ऊपर ले जाएं, मतलब सीलिंग में देखें। आप जहां बैठे सीलिंग में सांस भरते हुए ऊपर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सांस भरना छोड़ना। डीप इनहेल एंड एक्सेल ऑफ ब्रेथ इज वेरी कंपल्सरी। आपको पूरा ध्यान सांसों में रखना। साइंस ऑफ ब्रेथ कर रहे हैं, साइंस ऑफ ब्रेथ, ये बहुत पावरफुल है। आपको जब भी रोटेट कर रहे हैं आपको गहरी सांस लेना है, छोड़ना है। सांस देखिए, सांस लेते समय नाक से गहरी सांस लेना है, इस एहसास के साथ कि नाक से लिया हुआ सांस आपको ब्रेन में टच करते हुए, आपका गले से होते हुए, आपका डायफ्राम, ये डायफ्राम है, डायफ्राम के अंदर है जितना पूरे अपने इंस्ट्रूमेंट्स, किडनी, सब चीज डायफ्राम से होते हुए हमारा स्टमक में जा रहा है। ठीक है, अच्छा ये बताइए एक बार, राइट हैंड अपने स्टमक में रख लें। राइट हैंड अपने स्टमक में रख के एक बार गहरी सांस लें और खाली कर दें। अब ये बताइए कितने लोग का सांस अंदर जब लिए, कितने लोग का स्टमक बाहर आया और कितने लोग का अंदर गया? जब सांस आप अंदर लिए, स्टमक कितने का बाहर आया और कितने का अंदर गया? कोई बताएगा? सर मेरा अंदर गया। अंदर गया, ओके। अच्छा, रियल फॉर्म क्या, सही पैरामीटर क्या होना चाहिए? व्हाट इज द राइट मेथड, आप बता सकते हैं? बाहर गया सर, मेरा बाहर गया। बाहर, वेरी गुड। देखिए अपन जब बैलून में हवा भरते हैं तो क्या होता है, गुब्बारे में जब हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूलता है ना। तो इस प्रकार जब हम सांसें लेते हैं तो हमारा पेट फूलना चाहिए। दैट इज द राइट मेथड टू टेक इनहेल द ब्रेथ, राइट। अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, सर का सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं, सांस खाली करते हुए नीचे, और सांस भरते हुए दाहिने ओर, सांस भरते हुए
गले को गोल घुमाएं बहुत धीमी गति से। देखिए गले में जो भी समस्या है, इवन थायराइड, हर चीज जो है, हर चीज का सलूशन योग और ध्यान में है। आप समर्पित भाव से करें, उमंग के साथ करें, दिव्यता के साथ करें, छोटा बच्चा बन के करें। गोल घुमाएं एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा 5 बार। विश्राम। अब शोल्डर को घुमाते हैं। देखिए हाथों को इस प्रकार अपने कंधे के ऊपर रख लें और मुस्कुराते हुए गोल घुमाए। देखिए ये भुजा जो है कान में टच होना चाहिए। दिस शुड बी टच बाय आवर ईयर। गोल सांस भरते हुए नाक से गहरी सांस लेना है, छोड़ना है, मुस्कुराते हुए वापस वापस। विश्राम, रिलैक्स। अब दोनों हाथ सामने रख ले, मुट्ठी देखिए इस प्रकार, और चक्की चलाते हैं। अच्छे से चक्की चला ले, पुराने जमाने का चक्की। गोल उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। विश्राम कर लें, नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएं, मुस्कुराते हुए। एक बार आंखें बंद कर लें और पूरा ध्यान अपने शरीर में केंद्रित करें। आपने अभी गले का रोटेशन किया, हाथ का रोटेशन किया, क्लैपिंग कर भी किया। शरीर में से जो भी ऊर्जा बनी है, जो भी एक संवेदना लग रही है, अपने शरीर के साथ रहें, मन के साथ रहें। आंखें बंद कर लें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। स्क्रीन शेयर। My screen sharing is visible, sir? यस सर। सुखासन। ओके, उसके बाद अपन सुखासन में, देखिए सुबह उठ के सुखासन में बैठेंगे। सुबह जब भी योगा करना, सुखासन, ये मुद्रा को सुखासन बोलते हैं। दिस इज नोन एज ध्यान मुद्रा। थंब और इंडेक्स फिंगर को इस प्रकार घुटने के ऊपर खोल कर रखते हैं। दिस इज नोन एज चिन्ह मुद्रा और ध्यान मुद्रा। 4 मुद्राएं मेन होता है, चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, आदि मुद्रा एंड मेरुदंड मुद्रा। अपन बहुत सिंपल सीखेंगे। चिन्ह ये होता है सुखासन, एंड दिस इज ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा इसको कहते हैं अर्ध पद्मासन, एंड दिस वन इज पद्मासन। एंड अब करते हैं हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम, what do you mean by that? Bhastrika pranayam means deep inhale and exhale of a breath in a systematic manner, rhythmic manner is known as भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका में सिर्फ सांसें गहरा लेना है, छोड़ना। इससे देखिए पार्किंसन, अस्थमा, जिसको मेडिकल साइंस में दमा कहते हैं, मेडिकल साइंस में दमा को ये कहा जाता है कि दमा दम के साथ निकलता है। जिसको अस्थमा होता है, जिसको ब्रोंकाइटिस होता है, उसका क्योर नहीं होता, कंट्रोल होता है। जैसे मेडिकल साइंस में ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स है, कई सारे डिसीज है जिसका देयर इज नो मेडिसिन, लाइक पार्किंसन, शरीर में जो शरीर हिलती है, शरीर जो शिवरिंग होती है, पार्किंसन, स्नोरिंग, जिसको खर्राटे आता है, खुद तो बहुत अच्छा से सोता है और दूसरे को नहीं सोने देता है, दैट इज खर्राटे। खर्राटे का 100% ट्रीटमेंट है भस्त्रिका प्राणायाम और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। इसके बाद हम सीखेंगे। चलिए भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। सभी आंखें खोल के रख सकते हैं या बंद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सांसें लें, अंदर सांसें लेना, छोड़ना है, सभी साथ करेंगे। सांस अंदर, करते रहें भस्त्रिका प्राणायाम। Deep inhale and exhale of breath.
सांस ले, खाली। याद रखिए, अंदर लिया हुआ सांस आपको विश्राम दिलाती है और बाहर छोड़ा हुआ सांस आपको ऊर्जा प्रदान करती है। सांसें लें, जारी रखें, कंजूसी नहीं। आपके शरीर में जो भी टॉक्सिन्स हैं सब आज निकल के बहुत दूर चला जाएगा। परफॉर्मिंग भस्त्रिका प्राणायाम, डीप इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ सांसों को अंदर ले रहे हो पूरी गति के साथ और खाली कर रहे हो। जारी रखें, बिल्कुल रुके नहीं, कंजूसी नहीं। कुछ भी हो रहा है होने दें, कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें। जारी रखें, भस्त्रिका प्राणायाम। Somebody's mic is on, माइक को ऑफ कर दें। धीरे 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 नॉर्मल पोजीशन पे आके अपने आंखें खोल लें। वापस आ गए? वापस आ गए हैं आप? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आप लोग की तरफ से? यस सर, आप वापस आ गए। अच्छा, ओके। इट इज कपाल भाती। नेक्स्ट देख रहे हैं, दिस इज कपाल भाती। कपाल भाती क्या होता है? अपन को इस प्रकार एहसास करना है कि नाक में कुछ फंसा है और नाक से निकाल रहे हैं, ठीक है? तो ये होता है कपाल भाती। अभी आप इसको मत करिए क्योंकि कई लोग ब्रेकफास्ट वगैरह किए हैं, डॉक्टर साहब जैसे बोल रहे थे ब्रेकफास्ट, तो आप जस्ट मॉर्निंग में कर सकते हैं खाली पेट में। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, पूरा लंग्स क्लियर हो जाएगा। फेफड़े में जो स्पूट जितने मतलब बलगम वगैरह जमा रहता है ना, सब दूर हो जाएगा। आपका दवाई से जितना नहीं होगा, 1 दिन में। कपाल भाती। नेक्स्ट इज नाड़ी शुद्धि, अनुलोम विलोम। इसे क्या बेनिफिट होता है? बूस्ट अप द इम्यून सिस्टम, बूस्ट अप होता है, ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ता है, पार्किंसन कंट्रोल होता है, इंप्रूव योर आई साइट जो है हमारा बहुत अच्छा होता है, बॉडी स्ट्रेंथन होता है, अंदर से बहुत अच्छा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। दैट इज अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। एक बार करते हैं, देखिए। राइट नोस्ट्रल्स को बंद कर दें, राइट थंब से दाहिने हाथ से अंगूठे से दाहिने नाक को बंद करते हैं और लेफ्ट से गहरी सांस लें और राइट से खाली करें। नाड़ी शुद्धि या अनुलोम विलोम। वापस आ जाएं, समय अपने पास कम है इसलिए अपन कम देगा। भामरी प्राणायाम। भामर मतलब होता है संस्कृत में, भामर मीन्स भावरा को बोलते हैं। तो भावरे जैसा अपन को देखिए, तीनों उंगली, फर्स्ट 3 उंगली से आंख का पलक को बंद करते हैं। एक साथ करें, समर्पण के साथ, दिव्यता के साथ, ईमानदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ। फर्स्ट तीनों उंगली से आंख का पलक को बंद किए, दिस इंडेक्स फिंगर को माथे में लगा लिए और थंब से कान का कैप को बंद करना। कान के अंदर हाथ नहीं डालना है, कान का कैप को बंद करिए और नाक से गहरी सांस भरते हुए भौरे जैसा आवाज करना है, भौरे जैसे। इससे मैं बताया ना, पार्किंसन, मेमोरी पावर शार्प, जो बच्चों को आंख से पानी आता है वो नहीं आएगा, आंखों की रोशनी अच्छी होगी। बाल जो है काला, देखिए मेरा ये नेचुरल्स का नहीं है, नेचुरल है, नेचुरल ब्लैक, नेचुरल ब्लैक। ये बिकॉज आई एम फॉलोइंग दिस थिंग डेडिकेटली। चलिए करते हैं 3 बार भामरी प्राणायाम। सांसें ले और जम से
गुंजन करेंगे, सांस अंदर, एक बार और गहरी सांस भरे और भौरे जैसा आवाज करें। तीसरा और फाइनल राउंड। पूरी तरह विश्राम करके नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए, आंखें बंद ही रखें। इस करोड़ों रुपए के शरीर के साथ रहें, आंखें बंद रखें। देखिए, ऐसे कई लाखों लोग हैं जो इस दुनिया में जो सुबह की रोशनी नहीं देख पाते हैं। ऐसे कई लाखों लोग हैं जिसको सुबह की एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होता है। ऐसे कई लाखों लोग हैं जिसको रहने का छत नहीं है। ऐसे कई लाखों लोग हैं जिनके मम्मी पापा का कभी मम्मी पापा का दर्शन नहीं हुआ। हम लोग सब कितने खुश नसीब है, कितने लकी हैं। वी आर हैविंग दिस वंडरफुल लाइफ, वी आर हैविंग दिस वंडरफुल बॉडी, वी आर हैविंग दिस वंडरफुल क्रिएशन, थैंक्स टू द लॉर्ड ऑलमाइटी। जो भी आपका इष्ट देवता है, जो भी आपका ईश्वर है, नेचुरल पावर है, उनको आज धन्यवाद दीजिए कितना सुंदर शरीर देने के लिए। नेक्स्ट है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम बाद में सीखेंगे। वज्रासन, देखिए आंखें खोल लें। वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जो भोजन उपरांत कर सकते हैं। भोजन के बाद जो है करने वाला आसन सिर्फ वज्रासन है। वज्रासन में आप बैठेंगे तो आपकी 72,000 नस नाड़ियों में उसकी शक्ति जाती है। आपको कभी पेट में कोई समस्या नहीं होगी। कुछ भी आप खाएंगे वो डाइजेस्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, खाने का समय जो है ना, कभी भी 7 बजे के बाद आप खाएंगे तो आप हमेशा अच्छा फ्रेश फील नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा, शाम को 7 से पहले अपना भोजन कर लें। सबसे बेस्ट टाइम है 6 से 7 बजे के बीच में रात का डिनर करना। देखिए, सुबह का नाश्ता जो है राजाओं की तरह होना चाहिए और दोपहर का भोजन रानियों की तरह होना चाहिए और रात का खाना जो है भिखारियों जैसा होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब रात का भोजन बहुत कम, बहुत लघु भोजन करना चाहिए। जैसे अन्न वैसे मन। हम जैसे अपन अन्न खाते हैं, हमारा मन भी ऐसे होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मंडूकासन। मंडूकासन एक ऐसा आसन है जिसमें वज्रासन में बैठ के दोनों मुट्ठी से हमारा स्टमक को अच्छा से प्रेस करके पूरी तरह सामने झुकते हैं। ये इट इज वेरी गुड फॉर डायबिटीज। इससे क्या होता है, पैंक्रियास एक्टिवेट होता है और हमारा इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है। मंडूकासन डेली आप मंडूकासन मॉर्निंग में करिए। मंडूकासन अगर डायबिटीज होने वाला भी होगा तो नहीं होगा, पैंक्रियास हमेशा स्ट्रांग रहता है। इससे सर एक बार दोबारा प्लीज बताएंगे सर, एक बार सर दोबारा प्लीज एक बार बताएंगे इसको। मंडूकासन। हाँ सर प्लीज। मंडूकासन देखिए, ये वज्रासन है। वज्रासन में पहले बैठना है। आवर सिटिंग पोस्चर शुड बी इन वज्रासना। उसके बाद वज्रासन में बैठने के बाद ये देखिए, ये मुट्ठी इस प्रकार बंद करते हैं। थंब को इस प्रकार बंद करके हमारा स्टमक में, हम लोग अभी चेयर में बैठे हैं तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो बैठ के इसको पूरी तरह आप झुक जाएं जितना हो सकता है। याद रखिए, जिसको बैक पेन है वो झुकने से पहले तो सावधानी से झुकें, पूरी तरह झुक जाएं। और 1 मिनट, इसको पूरा करने की अवधि है 4 मिनट। फर्स्ट इससे 1 मिनट, फिर सेकंड यही सेम पोस्चर 1 मिनट, देन थर्ड दिस वन, ये पोस्चर रहेगा। इसको पूरा करके पूरी तरह झुक जाएं और 1 मिनट और 4 उल्टा हाथ रख के झुक जाएं, दैट इज 4 मिनट। 4 मिनट डेली कर लीजिए। आप देखिए, यू विल फील द वंडर ऑफ योग एंड मेडिटेशन। एज आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज बियॉन्ड मेडिकल साइंस। और उसके बाद आता है द राजाओं का राजा, आसन का राजा। इट इज नोन एज सूर्य नमस्कार आसन। इंग्लिश में वी विल टेल इट एज सन सैल्यूटेशन। 12 स्टेज होता है सूर्य नमस्कार आसन का। बहुत जल्दी बता देता हूं।
12 स्टेज। सबसे फर्स्ट है प्रणमासन, प्रणमासन, इट इज नोन एज प्रणमासन। सेकंड इज हस्त उत्तानासन, पूरा हाथ को पीछे हस्त उत्तानासन। थर्ड है पाद हस्तासन। फोर्थ है अश्व संचालनासन। फिफ्थ है पर्वतासन। सिक्स्थ है अष्टांग नमस्कारासन। हम इसको अष्टांग नमस्कारासन क्यों बोलते हैं? वाई वी यूज टू प्रोनाउंस इट एज अष्टांग नमस्कारासन? बिकॉज हमारे बॉडी के 8 अंग जमीन पे लगते हैं, शरीर के 8 अंग लगते हैं, इसीलिए इसको अष्टांग नमस्कारासन कहते हैं। देन नेक्स्ट है भुजंगासन। भुजंगासन, भुजंग मीन्स कोबरा पोज, कोबरा बहुत अच्छा है बैक पेन के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा भुजंगासन। नेक्स्ट पर्वतासन, फिर अश्व संचालनासन, फिर पाद हस्तासन, फिर हस्तुतानासन एंड लास्ट में फिर से प्रणमासन। 12 स्टेजेस ऑफ सूर्य नमस्कार आसन डेली करें। अगर आप ये जितना मैं बोला कुछ भी नहीं कर सकते हो, अगर सिर्फ सूर्य नमस्कार आसन करते हो, तब भी आपका देखिए आपका दिन जो रोज जो है रोजमर्रा की जिंदगी में आप ऊर्जा से लोथ-पोत रहेंगे। देखिए कोई भी जैसे मेंटल साइंस, आई हैव ट्रेन फ्रॉम निमहांस, में ट्रेनिंग हुआ है निमहांस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस से ट्रेनिंग हुआ है। तो उसमें निमहांस में जितने भी जो पेशेंट्स आते हैं ना, पेशेंट आते हैं उनको देखिए सूर्य नमस्कार कंपलसरी करवाते हैं। सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है हमारा मेंटल स्ट्रेस डिप्रेशन के लिए। देखिए व्हाट इज मेंटल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, आई विल टेल यू। मैं बच्चों लोगों को काउंसलिंग करता हूँ, इंजीनियरिंग बच्चों को काउंसलिंग करता हूँ। हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई किसी में स्ट्रेस है? देखिए स्ट्रेस का मतलब ये नहीं कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, साइकियाट्रिस्ट के पास बिल्कुल नहीं जाएं, क्योंकि ये योग और मेडिटेशन में इतना पावर है, इसमें इतनी शक्ति है, आपका मानसिक तनाव पूरा दूर हो जाएगा। देखिए रिसेंटली एक बच्ची मेरे पास आई, फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। शी टोल्ड दैट कि सर मुझे ऐसा जब भी मैं घर से निकलती हूँ और जब मैं रोड से जाती हूँ तो जब भी कोई 5-6 लोग खड़े रहते हैं ना, वो व्यक्ति इनको जानता है ना ये उनको जानती है, बट वो जब बात वापस में करते हैं और जब कुछ बोल के हंसते हैं तो क्या ये मन में बैठा लेती है कि उन्होंने जो बोल के हंसा है इनके ऊपर हंसा है। दे हैव मेड सम कमेंट फॉर हर एंड दे आर लाफिंग बाय सीइंग हर। ये मन में दिन भर बिठा लेती है, जबकि ना वो इनको जानती है, जानता है ना उनको जानता है। तो इस पर अननोन फियर, हम लोगों के कोई कुछ सब चीज ठीक रहता है, फिर भी एक अंदर से डर रहता है, एक कॉन्फिडेंस की कमी, अरे कुछ हो जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, अरे बाप रे मैं ऐसा करूंगा तो। ये सब चीज का सोल्यूशन है मेडिटेशन में, आज हम करेंगे, आज हम अभी उसका अनुभूति करेंगे। नेक्स्ट इज, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, समय कम है इसलिए आगे बढ़ रहा हूं, शवासन। देखिए शवासन मतलब ये पूरा करने के बाद आपको शवासन में कंप्लीटली रेस्ट पोज में आपको लेटना है। इससे क्या होता है, हम जितने भी एक्सरसाइज किए हैं, जितने भी क्रिया किए हैं, जितना भी आसन किए हैं, वो पूरा समाहित होता है शरीर में। ऑल द थिंग्स अब्सॉर्व इन योर बॉडी, इन आवर बॉडी, दैट इज शवासन। शवासन बहुत अच्छा होता है। मेडिटेशन, अब अपन मेडिटेशन की क्रिया सीखेंगे, मेडिटेशन करेंगे। What is meditation? Meditation is a practice of concentrated focus upon a sound object, visualization, the breath, movement or attention itself in order to increase awareness of our present moment. Meditation help us to reduce stress, promote relaxation and enhance our personal strength, inner engineering. हमारा inner engineering, मेरा एक सेशन है ब्यूटी ऑफ इनर इंजीनियरिंग, इसमें मैं इनर इंजीनियरिंग के बारे में बताता हूँ। अपना इनर इंजीनियरिंग और सब चीज बहुत अच्छा होता है। चलिए मेडिटेशन का अनुभव करते हैं। सब तैयार हैं मेरे साथ? यस सर। सभी सीधे बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं, विश्राम। स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरम सुखम आसनम मतलब आप उस प्रकार बैठे जो आपका शरीर को सुखपूर्वक हो, सुखमय हो, स्थिर होके बैठे। देखिए इन महाभारत युधिष्ठिर, यू माइट हैव हर्ड अबाउट द नेम युधिष्ठिर। व्हाट डज दिस युधिष्ठिर मीन? युद्ध
इष्टर, स्तर, युधिष्ठिर, युद्ध में भी स्थिर रहना, युद्ध में स्टेबल रहना, युद्ध में स्टेबल रहना, इसे युधिष्ठिर। अब हम मेडिटेशन की ओर अग्रसर करते हैं। उसका पहले आपसे ये चीज कहूंगा कि सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिशाएं बदल दीजिए, मंजिलें अपने आप मिल जाएगी। मेडिटेशन की ओर चले, मेडिटेशन करें। सब रेडी हैं डॉक्टर साहब? यस सर। सभी अपनी आंखें बंद कर लें। आज मैं आपको जो विजुलाइज करने बोलूंगा वो विजुलाइज करना है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको आपके पिता का चेहरा देखने बोलूंगा तो आपके पापा का चेहरा आपके इमेज में आपको क्रिएट करना है, आपके मन के सामने, मन में लाना है, आपका चेहरे के सामने लाना। पूरी तरह आंखें बंद कर लें। वी आर अंडरगोइंग थ्रू ए वेरी पावरफुल प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। आज मैं आपको आपके घर ले चलूंगा। आप लोग घर में ही बैठे होंगे, फिर भी मैं आपको ऐसे जगह ले चलूंगा जहां पर आपको बहुत अच्छा लगता हो। और उसके बाद मैं जैसे आपको विजुलाइज करने बोलूंगा, यू हैव टू विजुलाइज दैट इट इज नॉन एज इनर चाइल्ड एक्सपीरियंस। पूरी तरह अपने आंखें बंद कर लें और अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, अपने विचारों को ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे अपने चेहरे को देखें। Visualize visualize your face as if you are standing in front of the mirror और अपने आप को देख रहे हो। अपना सुंदर सा चेहरे को देखें। कई लाखों अकेले में, लाखों लाखों में अकेला चेहरा, सुंदर चेहरा। Thanks to the Lord Almighty, thanks to the wonderful creation that for giving us a wonderful life, wonderful body, wonderful face. अपने माता पिता का चेहरे को देखें। Visualize the face of your mom and dad. आज एहसास करें उनसे बहुत आशीर्वाद आपको मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद। उनका आशीर्वाद को ग्रहण करें। पूरी तरह आंखें बंद रखें। आज जो अनुभव होगा, आपको अनुभूति होगा, वो आपके जीवन में बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा। धीरे धीरे अपने घर के मुख्य द्वार को देखें। विजुलाइज द मेन एंट्रेंस ऑफ योर होम, स्वीट होम। और घर के अंदर प्रवेश कर लें और सीधे किचन में चले जाएं और वहां रखा एक नींबू के टुकड़े को काट लें। छोटा सा नींबू का टुकड़ा रखा है आपका किचन में, उसको काट लें और आधा कटा हुआ आपके जीभ में, आपके मुंह में अच्छे से निचोड़ लें। उस खट्टेपन को महसूस करें, विटामिन सी को महसूस करें। खट्टापन मुंह में अच्छे से निचोड़ लें और वापस उस जगह पे बैठ जाएं आपके घर में जहां आपको बहुत अच्छा लगता हो। खुला एयर, क्रॉस वेंटिलेशन, ऐसे जगह पे आपका घर में बैठ जाएं और घर के हर सदस्य का चेहरे को देखें। विजुलाइज ईच एंड एवरी फेस
of the members of your sweet home. आपके मम्मी पापा, छोटे बच्चे, बहन, नाना नानी, दादा दादी, जो भी है, सबके चेहरे को देखें मन की आंखों से। आज आपके आगमन से वो लोग सब बहुत खुश हैं। ऑल आर हैप्पी विथ योर प्रेजेंस। विजुअलाइज दैट सब आज बहुत खुश हैं। बिल्कुल किसी भी कंडीशन पे आंखें ना खोलें और सुखपूर्वक स्थिरम सुखम आसनम इस फॉर्मूले में बैठ जाएं आराम से। आपका घर में जहां आपको बहुत अच्छा लगता होगा, घर का ऐसा कोई भी कोना जहां बहुत अच्छा लगता होगा, वहां पर आप आराम से बैठ जाएं। अब एक मंत्र बजेगा। ये बहुत पावरफुल मंत्र है। ये तिब्बतियन लैंग्वेज में बोला गया है कि इस मंत्र को इस वक्त जो भी सुन रहा होगा, इस मंत्र के साथ जो भी ध्यान कर रहा होगा, उनके शरीर में जो भी टॉक्सिन्स है, उनके शरीर में जो भी कमियां हैं, उनके शरीर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, सब आज छोड़ के बहुत दूर चले जाएगा। इतना पावरफुल शक्तिशाली मंत्र के साथ आपको सिर्फ ध्यान से सुनते हुए आपको ना कुछ सोचना है, कुछ विचार आना है। आपको क्या करना है, सिर्फ सांसों में ध्यान रखना है। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेथ, नेचुरल ब्रेथ। जैसा सांस आ रहा है, सांस आ रहा है। इस मेडिटेशन, इस म्यूजिक में इतना पावर है। जापान और भूटान में जब भी इनके जितने भी डिप्लोमेट्स का मीटिंग होता है, इस मीटिंग से पहले इस मंत्र के साथ उनका दिनचर्या का शुरुआत होता है, मेडिटेशन करते हैं। तो आज अनुभव करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठ के इस मंत्र को ध्यान से सुनना है और सिर्फ सांसों में ध्यान। बस ये 10 मिनट का है, उसमें देखें, उसके बाद हम बात करेंगे। पूरा समर्पित भाव से, उमंग के साथ, तन्मयता के साथ, दिव्यता के साथ करना है। आंखें बंद करके पूरा ध्यान सांसों में रखें। सांसों में ध्यान। आपका शरीर में जो आज ऊर्जा का प्रवाह होगा, वो उसकी अनुभूति होगी। ध्यान से मंत्र को ध्यान से सुनते हुए सिर्फ सांसों में ध्यान दें। इस मंत्र को मैं आपको भेज के दूंगा, आप लोग जरूर इस मंत्र के साथ करें। सांसों में ध्यान, आंखें नहीं खोलेंगे, पूरा ध्यान अपने सांसों में ही रखें। शरीर को ढीला छोड़ दे, मन को ढीला छोड़ दे, जो भी हो रहा है होने दे। अपने इस करोड़ों करोड़ों रुपए के शरीर के साथ रहें। आंखें किसी भी कंडीशन पे ना खोलें, सांसों में ध्यान। सांस अपने आप आ रहा है, अपने आप जा रहा है, जो भी हो रहा है होने दे। सांसों में ध्यान।
बंद, कोई विचार नहीं। आपके शरीर में ऊर्जा का लहर अगला 1 मिनट और पूरा समर्पण के साथ सांसों में ध्यान। जो भी हो रहा है होने दें, विचारों को के प्रति एक मिनट और सांसों में ध्यान। शरीर ढीला, मन ढीला, विचार ढीला। आपके शरीर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है सब आज खाली हो जाएगा। जो भी दर्द है, वेदना है, समस्या है, इस पॉजिटिविटी के साथ बैठे, सकारात्मकता के साथ बैठे, जवान होके बैठे। हे ईश्वर के बच्चे, हे सर्वशक्तिमान के छोटे बच्चे बन के बैठे। आपके माता पिता गुरु का आशीर्वाद आज बहुत आपके ऊपर बरस रहा है। मुस्कान के साथ बैठे हैं। 1 मिनट और धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। बी अवेयर ऑफ योर बॉडी। अपने परिसर के प्रति सजग हो जाएं। अपने विचारों के प्रति सजग हो जाएं। और जब भी पूर्णता लगे, जब भी 100% लगे, बहुत धीमी गति से अपनी आंखें खोल सकते हो। जब भी पूर्णता लगे, बहुत धीमी गति से धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोल सकते हैं।
सभी डिग्नेटरीज, सभी को मेरा प्रणाम, वंदन। सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। कैसे रहा सेशन? वंडरफुल सर। सर बढ़िया था, एकदम बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया था। वेरी नाइस। थैंक यू। प्रणाम सर, वेरी नाइस सर। थैंक यू। मैं लाइव सेशन लेता हूँ, मैं सेशन भी करवाता हूँ। क्लैपिंग थेरेपी, लाफिंग थेरेपी, रबिंग थेरेपी, ढोलक थेरेपी, ये सब अलग अलग थेरेपी है, इसमें सेशंस लेते हैं। कभी आप इनवाइट करिएगा, हम जरूर आपको ये करवाएंगे। और मैं बता रहा हूँ डेली, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ यू आर गिविंग 1 hour ऑफ योर टाइम फॉर योग एंड मेडिटेशन, मैं आपको बताता हूँ 23 hours आपका अच्छा जाएगा। डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बियॉन्ड मेडिकल साइंस है। आप 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए। और खाने पे, मतलब खाने पे ध्यान रखिएगा। बर्गर पे आजकल देख रहे हैं कि लोग स्विगी जोमेटो से मंगा के बर्गर खाते हैं। बर्गर मतलब बर्बादी का घर, पिज्जा मतलब खून को पी जाए। ये सब चीज को अवॉइड करिए और अच्छे अच्छे चीज को अपन खाने में सम्मिलित करेंगे तो हम लोग जो है बहुत, जब तक रहेंगे तब तक अच्छा रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, 100% रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, आई एम हैंडिंग सर, ओवर मेरा प्लेटफॉर्म टू यू। मेरा एक क्वेश्चन है सर। एक सर एक्चुअली सर, आजकल के दौर में क्या है सर, सुबह निकलते हैं और दिन भर ऑफिस में रहते हैं, शाम को लौटते हैं। तो मेरा एक नॉर्मल क्वेश्चन ये है कि एक समस्या क्रिएट होती है नॉर्मली, आई थिंक वो सभी को होती है, ये गैस और एसिडिटी। सर इसका थोड़ा बताएं आप, ताकि हम लोग इसका एडवांटेज ले सकें सर। बहुत अच्छा, बहुत मतलब बहुत एक कॉमन समस्या आप बताएं, बहुत कॉमन समस्या। इसके लिए मैं आपको बताया हूँ, एसिडिटी गैस। आप रात को जब खाना खाते हैं, डिनर के बाद आप वज्रासन में बैठिए, वज्रासन, और देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को दबाइए। आपको जिसको गैस एसिडिटी है इसको भी दबाइए, देखिए आपको पेन होगा, एक विशेष पेन होगा। यहाँ प्रेस करिए ये पॉइंट को, देखिए दबा के देखिए, आपको एक अलग टाइप का पेन आ रहा होगा। जिसको गैस और एसिडिटी, पेट में जिसको समस्या है ना, उसको दर्द देगा यहाँ पर करने से। एक और दूसरा है, दूसरा सुबह आप खाली पेट में, देखिए गैस और एसिडिटी के लिए मैं सबसे बेस्ट मेडिसिन बता रहा हूँ। रात को सोते समय, रात को आप जब बेड में जाने से पहले आप अच्छा से ब्रश कर लीजिए। मेरा आवाज क्लियर है? यस सर। अच्छा से रात को ब्रश कर लीजिए और सुबह उठ के बिना ब्रश किए, जैसी बेड से आप उठते हो, बिना कुल्ला किए, बिल्कुल कुल्ला नहीं करना है आपको, स्पिट भी नहीं करना है। एज इट इज जो है गर्म पानी में आप नींबू को निचोड़ के गर्म पानी में, जैसा चाय पीते हैं इस प्रकार सिप कर करके पीजिए। नींबू पानी, और हो सकता है तो 5-6 पत्ता तुलसी का डाल दीजिए, तुलसी का, उसको लीजिए। आपको 5 दिन में आपका पेट की समस्या दूर हो जाएगा। और नेक्स्ट कपालभाति करिए, कपालभाति, कपालभाति है ना, कपालभाति करेंगे। कपाल मतलब होता है फोरहेड, भाती मतलब होता है चमक, मतलब इसे आपका 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। आप डेली कपालभाति करिए और सुबह नींबू का गर्म पानी पीजिए। और रात को जब भी आप ऑफिस में भी बैठते हैं तो थोड़ा कहीं नीचे बैठ के आप वज्रासन में बैठिए, वज्रासन। आपका गैस एसिडिटी तो बहुत सिंपल चीज है सर, सब बहुत सिंपल चीज है, सब दूर हो जाएगा। सर जैसे रात में अगर ढंग से नींद नहीं आती है, आज की लाइफस्टाइल तो ऐसी डिस्टर्बिंग लाइफस्टाइल है, तो ऐसा कोई आसन करके सोएं जिससे नींद एकदम प्रॉपर नींद आए। अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे, बहुत अच्छा। अगर आपके पास 10 मिनट टाइम है तो मैं वो क्रिया करवा दूं आपको अभी। सर है, बाकी लोग भी अगर एग्री हो तो सर। यस सर, श्योर श्योर सर। करवा लीजिए। नींद अच्छी आएगी तो ब्लड अच्छा जाएगा सर। जी
नींद अच्छी आएगी तो अगला दिन अच्छा जाता है, नहीं तो भारीपन रहता है हमेशा। बहुत अच्छा से जाएगा, नींद बहुत अच्छा होगा। देखिए नींद का डिस्टरबेंस का मेन रीजन क्या है, आप लोग अपन सब खाना खाते हैं और तुरंत बेड में चले जाते हैं रात को 10 बजे, पूरा जो है ना मुंह को डस्टबिन बना लेते हैं, कुछ भी मुंह में ढकेल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, मुंह को डस्टबिन बना लेते हैं लोग, और उसके बाद ज्यादा टाइम देते भी नहीं है डाइजेशन होने की, सीधे बेड में चले जाते हैं और बहुत सारे विचार दौड़ते रहते हैं। और जब भी आपको रात को नींद नहीं आएगी ना, एक मेडिटेशन पद्धति बताता हूं, इसको बोलते हैं इंटरनल जर्नी। इंटरनल जर्नी एक बार करेंगे अपन सब, ठीक है, 5 मिनट लगेगा। मैं ठीक। आपको, इसमें क्या है, बॉडी के एंटायर पार्ट को विजुअलाइज करना है और देखिए कितना अच्छा नींद आएगा। आज आप रात को करके देखिएगा और आप देखिएगा आपका नींद का क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा। इट इज नोन एज आंतरिक यात्रा, इंटरनल जर्नी। चलिए मैं करवा रहा हूं आप लोग को, आप लोग सब आंखें बंद कर लें, 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट। एक्सक्यूज मी सर, या ये इसी को योग निद्रा भी इसी को बोलते हैं क्या? योग निद्रा भी इसी को बोलते हैं, एग्जैक्टली इसी को योग निद्रा भी बोलते हैं। योग की भाषा में इट इज नोन एज योग निद्रा। मतलब इसमें आपका नींद की क्वालिटी इंप्रूव होती है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, आप आराम से, अगर नींद अच्छा होगा आपका पूरा दिनचर्या अच्छा होगा, नींद अच्छा नहीं होगा तो आपको कुछ काम करने को मन नहीं करेगा। चलिए हम करते हैं, थोड़ा सा नींद ले लेते हैं अभी। आंखें बंद कर लें, सभी आंखें बंद कर लें, और मैं जैसे विजुलाइज करने बोलूंगा ना, वही उस अंग पे अपना ध्यान को दौड़ाना है, विजुलाइज करना। चलिए आंखें बंद कर लें। एहसास करें कि आप अपने बेड में लेट गए हो, बेड में लेट गए हो। 100% करना है, देखिए आपको कितनी अच्छी अनुभूति होगी। सीधे लेट जाएं अच्छा से, और अपने जो भी वजन है, आपका जितना वेट है ना, उसको मन में ध्यान करते हुए पूरा वेट को जमीन पे छोड़ दें। एहसास करना है कि आप पूरा वेट, आपका 70 किलो है, 80 किलो है, आप पूरा वेट को जमीन पे आप छोड़ दिए हो। आंखें पूरी तरह बंद होना चाहिए। एक बार गहरी सांस लें और खाली कर दें। एक बार और गहरी सांस लें और पूरी तरह खाली कर दें। धीरे धीरे अपना नजर जो है मन की आंखों से दाहिने पांव के 5 उंगलियों को देखें। रात को सोते समय आपको करना है, दाहिने पांव के 5 उंगलियों को, दाहिने पांव का पिंडली मतलब घुटना और पांव के बीच का हिस्सा पे नजर ले जाएं, मन की आंखों से देखना है। दाहिने पांव का घुटना, दाहिने पांव का जांघ। अब बायां पांव पे चलते हैं, बायां पांव की 5 उंगलियों को देखें, बायां पांव का पिंडली, बायां पांव का घुटना, बायां पांव का जांघ। अपना नितंब पे फोकस करें मन की आंखों से। अपने दाहिने हाथ को देखें, पूरा दाहिने हाथ, विजुलाइज योर राइट हैंड। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे प्रभु, हे जीसस, हे वाहे गुरु, हे अल्लाह, इस हाथ से ऐसा कोई काम मैं ना करूं कि जिससे कि मुझे कभी कठिनाई हो, मेरे घर वाले को कोई परेशानी हो। ईश्वर, विद पॉजिटिव थॉट बायां हाथ को फोकस करते हैं, बायां हाथ को देखें, पूरी तरह विश्राम। What is truth? What
is untruth. It is not in the words that you speak. It is in the way you hold the life within you. It is in the way you are. Whether you are a crawling worm or a big human being, when sun comes up in the morning, it lights up everybody. Whoever opens his eyes, for him there is life to see. So the essential nature of life is all inclusive. This is the truth. If you sit here like that, absolutely all inclusive, you are in touch with truth. If you are in touch with truth, there can be no suffering anymore. It's as simple as that. अपने पेट पे नजर ले जाएं, विजुलाइज योर स्टमक एंड विजुलाइज योर चेस्ट। पूरा चेस्ट पे फोकस करें, बिल्कुल भी आंखें ना खोलें। अपने गले पे फोकस करते हैं, विजुलाइज योर नेक एंड विजुलाइज योर फेस। आपका चेहरे को देखें जैसा कि आईने के सामने खड़े हो। ब्यूटीफुल, सुंदर चेहरा, लाखों में अकेला चेहरा। मम्मी पापा को प्रणाम करें, गुरुजन को वंदन करें। सर के बाल को देखें, अब पूरा शरीर को देखें। विजुलाइज योर एंटायर बॉडी एज इफ यू आर स्टैंडिंग एंड यू आर विजुलाइजिंग। आप जैसे खड़े हो और अपना शरीर को देख रहे हो। एंटायर शरीर को देखें और पूर्णतः विश्राम करें। बस 2 मिनट और। आपका शरीर, यू आर इन ए वेरी रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड। पूरी तरह रिलैक्स। बस अगला 2 मिनट और। रिलैक्स करें, बिल्कुल भी आंखें ना खोलें। ओम मानी पद्मे हम, इस मंत्र में कहा गया है सब कुशल मंगल हो, आपकी लाइफ में बहुत रोशनी आए, आपकी जिंदगी में प्रकाश आए, आपकी जिंदगी में खुशियां आए। आप खूब हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस आपको ध्वस्त ना करे। समर्पण के साथ, दिव्यता के साथ आंखें बंद रखें। ओम मानी पद्मे, मानी पद्मे, मानी पद्मे, मानी पद्मे, ओम मानी पद्मे, मानी पद्मे, ओम मानी पद्मे, मानी पद्मे, ओम मानी पद्मे, मानी पद्मे, मानी पद्मे, ओम मानी पद्मे, मानी पद्मे, मानी पद्मे। धीरे धीरे जब भी आप रात को ये करते हैं इंटरनल जर्नी, आपको बहुत अच्छा नींद आ जाता है। आप वापस आ जाएं और जब भी अच्छा लगे अपना शरीर, मन और परिसर के प्रति सजग होते हुए धीरे धीरे करके अपने नेत्र को, अपने आंख
को खोल सकते हैं। सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। थैंक यू, थैंक यू, हाँ, थैंक यू। नहीं नहीं, कई कई बहुत दिनों बाद ऐसा सेशन, इतना अच्छा सेशन अटेंड किया सर। थैंक यू, थैंक यू सर। हाँ। और कभी कभी इन्वाइट करिएगा, मेरे पास अलग सर अलग एक रिक्वेस्ट, सर क्या आपका कांटेक्ट नंबर मिल सकता है क्या? जी जी बिल्कुल, मेरा कांटेक्ट नंबर डाल सर? ले लीजिए, नोट कर लीजिए मेरा नंबर। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं अभी मेरा कांटेक्ट नंबर जैसे ही बताऊंगा आपका चेहरे में मुस्कान आ जाएगा, ये गारंटी है। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 76974 76974 77777। Once again, I am repeating my number, 76974 77777, 5 times 7, and my WhatsApp number is 9826199557। व्हाट्सएप में आप पूछ सकते हैं, आपका कोई भी समस्या है मैं उसका निराकरण करूंगा। मुझे नहीं पता रहेगा तो मैं एक्सपर्ट से पूछ के आपको, हमारी टीम है, वी आर हैविंग ए नंबर, व्हाट्सएप नंबर रिपीट करेंगे सर? व्हाट्सएप नंबर प्लीज रिपीट कर लीजिए। 9826199557, 9826199557। My email ID is crm@csitgroup.in, crm@csitgroup.in। मैं 24/7 अवेलेबल रहता हूँ, कभी भी आप फोन कर सकते हैं। सर आपकी सख्त जरूरत है। जी जी, थैंक यू। हाँ। नहीं, हम लोग ऐसे कई बच्चे जो सुइसाइडल टेंडेंसी होती है ना, उसको हम वापस लाते हैं। ऐसे कई जिंदगी में हमने मुस्कान लाया है। क्यों सर? थैंक यू जी, Thank you very much, sir. Thank you very much for listening, and I highly appreciate your presence. Thank you, sir. सब इतना अच्छे से इंटरेस्ट से सुने। देखिए, आपका सेशन फैमिली के साथ देखा जा रहा था, मैं भी पूरी फैमिली को लेकर बैठा था आपका सेशन देखने। बाकी ये सेशंस तो हमने अकेले अकेले किए, पर ये सेशन हम अपनी फैमिली के साथ किए। हम तो अभी घर नहीं जा पाए अभी। सर हम तो भी घर नहीं जा पाए, अब निकलेंगे आप यहाँ से। अच्छा ठीक है सर। चलिए सर, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। All the love and affection, ये दुनिया गोल है, किसी न किसी मुकाम पे जरूर मिलेंगे, कहीं ना कहीं जरूर मुलाकात होगी। बिल्कुल सर, आपको बुलाएंगे कोरोना के बाद। जी, कोरोना के बाद आपको बुलाएंगे हमारे इंस्टीट्यूट में, जरूर सर, आपकी सेवाएं लेंगे हम। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार। ठीक है, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच सर, नमस्कार। Hello. Before the end of this session, बर्वे सर मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। हाँ। सर का सेशन बहुत ही अच्छा था और सबके लिए फायदेमंद था। हाँ। और आज की बहुत बड़ी जरूरत है। उसी सिलसिले में एक इंफॉर्मेशन ये देना चाहूंगा कि डेली डीडी नेशनल पे सुबह 7 बजे से बाबा रामदेव भी योगा वगैरह बताते हैं। और हाँ। उसके बाद में 7 से 8 डीडी नेशनल पे आता है, और 8 बजे से इंडिया टीवी पे लाइव आते हैं, वो करीब आधे घंटा तक। इंडिया टीवी पर मतलब कोरोना से जंग बाबा रामदेव के संग। तो उसमें उन्होंने इतनी चीजें बता दी है कि किसी के पास कोई बहाना नहीं रहेगा कि हमको टाइम नहीं मिलता है या ये नहीं होता है वो नहीं होता है। तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा, ये 2 प्रोग्राम ना देख पाए तो एटलीस्ट 8 बजे का इंडिया टीवी का प्रोग्राम जरूर देखें। तो जो सर
करना चाहिए वो सबको मोटिवेट करते हैं, और सबने तो वाकई हम लोगों को बहुत कुछ दिया है आज, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर राजेश सर आपको, और बिल्कुल बर्वे बिल्कुल। सर और पीके सर को भी। अरे सर, थैंक यू वेरी मच अजय सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके सर, नमस्कार। चलो नमस्कार, Okay, कल मिलते हैं फिर। Dr. Thank you. मिलेंगे सर, नमस्कार। ओके, थैंक यू सर। ओके बाय।